children. Today our topic is circular motion. When an object moves on the circular path, then a body is said to be in circular motion. That circular motion is also defined as two types: uniform circular motion and non-uniform circular motion. And if you are moving in circular path in any speed, always changes the speed, then that is called non-uniform circular path. But if speed is constant and you are in circular motion, then velocity changes. Velocity changed. Velocity change means the path is circular, so always changes the direction. So velocity change, but the speed always uniform, always same speed. So magnitude of velocity is same, but direction is always changes. So it is said to be give velocity changes during uniform circular motion. If body covers circular path during motion, then motion is said to be circular motion. And if a body moves with uniform speed on circular path, then motion is said to be uniform circular motion. Any uniform circular motion is accelerated motion because every moment direction changes, so it has constant speed, but velocity not constant. Centripetal and centrifugal force. When we are moving on circular path, any object moving on circular path, then the two force works on that object. One in the direction of center and other is the outside of the center. In the direction of center is called centripetal force. In direction of center, that is centripetal force, and in the outward of the center, that is centrifugal force. Both forces are opposite and equal, but not just like Newton's law of motion. Newton's law of motion, each force equal and opposite. Each action have equal reaction. Each action have equal and opposite reaction, and that is works on two objects. एक टकराया तो दूसरे पे वर्क किया, ये दूसरे पे वर्क किया, सो वहां पे दो ऑब्जेक्ट होता है, बट यहाँ वन ऑब्जेक्ट पे ही दोनों मोशन वर्क कर रहा है. सेंट्रीपेट दोनों फोर्स काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल. एक अंदर की ओर ला रहा है जो कि टेंशन दे रहा है. अगर सर्कुलर मोशन थ्रेड से कर रहे हो तो टेंशन इन द थ्रेड दे रहा है, और दूसरा बाहर की ओर ले जा रहा है. तो ये दोनों वर्क कर रहा है, तभी उसका फिक्स्ड रेडियस है. इसलिए कहा जाता है कि इसका फॉर्मूला जो होता है, when a body moving covers a circular path during motion, then force acts on the body towards the center of the circular path. That external force is defined as centripetal force, and F equal to mv square by r, where v is the linear velocity. तो mv square by r से हम लोग उसका centripetal force या दोनों चूंकि इक्वल होता है तो centrifugal force निकाल सकते हैं. यहाँ पे एक्सीलरेशन का काम करता है v square by r, और ये v स्क्वायर बाई r ही असल में ऑब्जेक्ट का चेंज करने में, डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है. ये ऑलवेज जो होता है फोर्स के परपेंडिकुलर होता है. एक्सीलरेशन जो है वो फोर्स के परपेंडिकुलर होता है. और जितने भी आपका जैसे कि हेवनली बॉडीज है अबाउट द सोलर सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन इन एटम, they are moving in fixed orbit due to centripetal and centrifugal force. वहां पे सेंट्रीपेटल फोर्स जो है उसका सेंटर की ओर वर्क करता है, और इस तरह से, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर. और जो भी आपका एस्ट्रॉइड या सब किसी प्लैनेट से आते हैं, दैट इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और क्रीम वगैरह जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर निकलता है. आप वॉशिंग मशीन में कपड़ा जो सुखाते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द स्यूडो फोर्स. ये कहता है कि ऑटोमेटिकली वर्क करता है, ये आप कोई उसमें एफर्ट नहीं लगाते. सेंट्रीपेटल के लिए लगाते हैं, वो आप
देते हैं, जैसे कि आप फिंगर से इस तरह से घुमाए तो क्या होता है कि जब तक आप फोर्स दे रहे हैं, इक्वल फोर्स दे रहे हैं, आपका थ्रेड जो है या की का रिंग है जो गोल गोल घूमता रहता है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा कम करते हैं तो क्या होता है, वो धीरे 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 उसकी रेडियस कम होती जाती है, या फिर अगर आपका हाथ से छूट जाता है तो वो टेंजेंशियली भाग जाता है, यानी वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, क्योंकि टेंजेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑलवेज होता है। तो ये चीज जो है आप लोग इसमें महसूस करेंगे। अब इसके बाद हम तुम लोगों को बताएं कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगल कास्ट पर यूनिट टाइम एट द ओरिजिन यानी कि सेंटर ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, और इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, यानी डिग्री पर सेकेंड नहीं होता, रेडियन पर सेकेंड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और ओमेगा इक्वल टू एंगल कास्ट, टोटल एंगल कास्ट एट द सेंटर एंड बाय टोटल टाइम टेकन। और यहाँ पे दिखा रहे हैं तुमको वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज टैंजेंट के डायरेक्शन में है, और ये जो फोर्स है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, रेडियस पे टैंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर बनाता है, तो ये दिख रहा है तुम लोगों को यहाँ पे टैंजेंट के डायरेक्शन में है। तो ये चीज जो है आपको ये समझना होगा। इसके बाद ये रेडियन क्या है, रेडियन जो है वो आपका वो एंगल है सेंटर पर जो आपका जब लेंथ ऑफ आर्क जो होता है, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड जो होता है सर्कुलर पाथ में, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो उसको हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। और इस ये जो है 1 रेडियन जो हम लोग थीटा का वैल्यू जो निकालते हैं एल बाई आर से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ये भी तुम लोग को बता दें। तुम लोगों को मालूम है ना कि 360 डिग्री अगर हम सर्कुलर पाथ में कवर करते हैं तो लेंथ 2 पाई आर करते हैं, तो 1 डिग्री 2 पाई आर बाई 360, और इसलिए थीटा डिग्री पाई आर थीटा बाई 180, ये फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का। तो ये पाई आर थीटा बाई 180 यहाँ पे थीटा डिग्री में है, अगर रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग 180 बाई पाई करेंगे, तो ऑटोमेटिकली 180 बाई पाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू आपका आर थीटा। अब है कि तुम लोग लीनियर वेलोसिटी अगर डिस्टेंस कवर्ड, तो यहाँ पे एक तो सर्कुलर पाथ है और यूनिफॉर्म मोशन है, तो हम लोगों को जो हम यूनिफॉर्म मोशन में जो हम लेंगे तो डिस्टेंस 2 पाई आर बाई टी लेंगे, लेकिन मान लो कि एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, लेंथ बाई टाइम एल बाई टी इक्वल टू आर थीटा बाई टी हो जाएगा। और एल बाई टी बराबर तो हम लोग जानते हैं लीनियर वेलोसिटी, लेकिन आर बाई आर चेंज कर नहीं रहा है, सर्कुलर पाथ का रेडियस चेंज नहीं कर रहा है, तो ओमेगा बराबर होता है थीटा बाई टी, तो ओमेगा, सो v इक्वल टू ओमेगा इनटू आर, यानी कि लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। ये हम लोग का रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ फोर्स। कहता है कि सर्कुलर मोशन तो तुम लोगों को हम बता दिए, अब कहता है कि किसी कंडीशन में जब हम रोटेटरी मोशन एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो वहां पे हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स वर्क करता है, और ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट न्यूटन मीटर होता है, और ये मोमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। आई थिंक तुम लोग लीवर पढ़े होंगे जूनियर सेक्शन में। लीवर जो है वो हम लोग का क्या होता है, एक सपोर्टिंग पॉइंट होता था, और सपोर्टिंग पॉइंट के अबाउट हमारा सी सॉ जो है तुम लोग जानते हो वो मूव करता था। सी सॉ पढ़े होगे ना, जो झूला झूलते हो तुम लोग स्कूल में, एक साइड दोनों साइड एक एक बैठते हो और बीच में आपका फलक्रम होता है, यानी कि सपोर्टिंग पॉइंट होता है। तो कहता है कि हम लोग निकालते थे, याद करो कि लोड आर्म इनटू एफर्ट, लोड आर्म इनटू लोड इक्वल टू एफर्ट आर्म इक्वल एफर्ट, देन दैट इज बैलेंस्ड, अदरवाइज क्या होता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो ये आप लोगों को तुम लोगों को पता होना चाहिए कि ये भी हम लोग निकालते थे। तो ये हम लोग टॉर्क कहते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स, ये हम लोग निकालते हैं फॉर रोटेटरी मोशन और एन एक्सिस, जब फोर्स अबाउट एन एक्सिस। और आज इतना ही, अगले दिन हम लोग फिर पढ़ेंगे। तो हम लोग का ये